Hello children, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will give you the short answer type questions of working of institutions. These are the question answers which will helpful for you for your annual examination preparation. So let's start. What is the importance of political institutions? Explain. Answer. Political institutions make rules and laws. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. These institutions decide all this as it is clear from the following points. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decisions, and Supreme Court is an institution where disputes between citizens and government are finally settled. तो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हमारे देश में 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि देश को सिस्टम को पूरी तरह से चलाने के लिए, देश को प्रॉपरली रन करने के लिए काम करते हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो 3 कौन कौन से कहलाते हैं? पहला तो लेजिस्लेचर, फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है आपका जुडिशरी. तो इसमें जो होते हैं वो रूल्स और लॉ को बनाने का काम करते हैं, वहीं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो बनाए गए मिनिस्टर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं. और जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स होते हैं वो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में यदि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं तो उनको सेटल कराने का काम वो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. आंसर. Following are the major functions of the Prime Minister. First, the foremost functions of the Prime Minister is formation of the Council of Ministers, distribution of portfolio among ministers, presiding upon the meeting of the cabinet, supervise the working of various departments and functioning of various ministers. The Prime Minister acts as a link between the President and the Council of Ministers, establishing foreign relations and making various international treaties and agreements is the responsibility of the Prime Minister, and exercising the emergency powers of the President. So children, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके फंक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं. तो चिल्ड्रन, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको उनका काम बताते हैं, और इसके साथ साथ जो भी पोर्टफोलियो होते हैं मिनिस्टर्स के बीच में उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. फिर जो भी वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स या उनको प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं उनको सुपरवाइज करने का काम भी करते हैं. इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक भी बनाने का काम करते हैं. वो लिंक भी होते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में. सारा जो भी सिस्टम रहता है प्राइम मिनिस्टर ही देखभाल करते हैं. प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो भी बातचीत होगी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संपन्न होती है. इसके साथ साथ फॉरेन रिलेशंस भी उनको भी सही रहें ये देखना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो भी सारा प्राइम मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो सही से हो. और इसके साथ प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, इमरजेंसी में जो पावर्स हैं वो सही से एक्सरसाइज करवाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का ही होता है. Now, next question. The Prime Minister is the pivot of administration. Explain or write the importance of the post of the Prime Minister. Answer. The post of Prime Minister has specific importance in India. He is the basis of entire administration system.
He is the head of the Council of Ministers, the primary advisor to the President and the leader of Lok Sabha. Members of the Councils of Ministers are also appointed by the President on advice of the Prime Minister. He forms the administrative and economic policies of the country with the assistance of his Council of Ministers. He coordinates the work of various departments. The Prime Minister represents the nation in global sphere. Hence, the Prime Minister is the primary authority of administrative policies in the Parliament, country and abroad. प्राइम मिनिस्टर जो होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक पोस्ट होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है हमारे भारत में। प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है वह एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेस होता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, साथ ही लोकसभा के लीडर और प्रेसिडेंट का एडवाइज़र भी होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके साथ जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं कंट्री के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी बनाते हैं वो सारा प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में ही बनाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पूरे देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जवाबदारी बहुत ज़्यादा होती है पार्लियामेंट में या फिर कंट्री में या फिर कंट्री के बाहर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उनकी सारी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आंसर, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड he has complete control on all the activities of the Council of Ministers. The Prime Minister distributes portfolio among the ministers of the cabinet. The Prime Minister can redistribute the departments to the ministers and can also ask for their resignation. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं और इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी एक्टिविटीज़ का पूरा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। पूरा कंट्रोल वो रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है और किसी से भी रेजिग्नेशन भी मांग सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में इस तरह से रिलेशन होता है। चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन, गुड डे।